So now we are going to start this chapter 3. The name of the chapter is trigonometric functions. Right. In earlier classes, we have studied the trigonometric ratios of acute angle as the ratio of the sides of a right angle triangle. Class 10th में हमने acute angle means 0 to 90 उनकी trigonometric ratios हमने देखी थी sin theta, cos theta, tan theta, cosec, sec and cot. Right. That is the ratio of the sides of a right angle triangle. We have also studied the trigonometric identities. Trigonometric identities भी हमने वहां पे पढ़ी थी और उनकी applications of the trigonometric ratios हम लोगों ने वहां पे देखा था in solving the problems related to height and distance. Height and distance की problems को हम लोग solve करने के लिए use करते थे trigonometric ratios, right? Basically, in this chapter, we will generalize the concept of trigonometric ratios to trigonometric functions and study their property in this chapter 3 in class 11th. हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़ी थी, कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जनरलाइज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जनरलाइज करेंगे और उसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? द फोटो ऑन द स्क्रीन, इफ यू लुक एट दिस फोटो ऑन द स्क्रीन, the photo of Aryabhat having a lot of contribution in this trigonometry. So we will discuss about that things also. Now let us look at this. Let us look at the introduction of this trigonometry. Uh, anyone? Anant. Anant, could you please read this written on the screen? Okay, sir. The word trigonometry is derived from the Greek words trigon and metron, and it means measuring the sides of a triangle. The subject was originally developed to solve geometric problems involving triangles. It was studied by sea captains for navigation, surveyors to map out the new lands by engineers and others. Currently, trigonometry is used in many areas such as the science of seismology, designing electric circuits, describing the state of an atom, predicting the heights of tides in the ocean, analyzing a musical tone, and in many other areas. Okay, thank you. So the word, if you look at this introduction, the word ये trigonometric word जो हमारा name है chapter का, trigonometric functions. Functions के बारे में हम लोग we have already discussed about the functions. Function के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं chapter 2 में. What is function? I hope that thing is clear to you. And another word used here is trigonometry. तो trigonometric word आया कहाँ से है? Basically it is a Greek word. ये Greek word है. It is made up by the two words. दो वर्ड से बना है ये, ट्रिगोन एंड मेट्रोन. इसका मतलब क्या होता है, ट्रिगोन एंड मेट्रोन? इट मींस मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ट्राइगोन, ट्राइगोन मींस, ट्राई मींस थ्री एंड गोन मींस साइड. सो तीन साइड वाले ट्रायंगल की, और मेट्रोन मींस मेजर. इफ यू मेजर द साइड ऑफ द ट्रायंगल, then this word combinedly is called as this Greek word trigon and metron. We says that trigonometry, right? Basically, this subject was originally developed to solve geometrical problems involving triangles. So जब इसका बेसिक ओरिजिन हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, ये किस लिए यूज होती थी? ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इसका यूज होता था, राइट? इट वाज स्टडीड बाय सी कैप्टन फॉर नेविगेशन. नेविगेशन के लिए इसका यूज होता था, ठीक है? सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड, न्यू लैंड को मैप आउट करने के लिए यूज होता था. इंजीनियर्स इसको यूज करते थे एंड मैनी अदर यूजेस आर आल्सो देयर. करंटली, करंट क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री को करंटली हम लोग यूज करते हैं साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में, साइंस में इसका यूज होता है एंड इट इज यूज्ड इन मैनी एरियाज, राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिजाइन करने में इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का. डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है. ये एटम की क्या स्टेट है, एटम की स्टेट को डिस्क्राइब करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ द टाइड्स इन द ओशियन, ओशियंस में जो टाइड्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, उनकी कितनी हाइट होगी वो प्रिडिक्ट करते हैं, पहले से हम लोग एक अनुमान लगाते हैं. इन दैट ऑल्सो वी यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री. एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन, म्यूजिकल टोन, म्यूजिक में भी इसका यूज होता है, म्यूजिकल टोन को एनालाइज करने में. एंड मैनी अदर एरियाज वाइडली यूज्ड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट, राइट? सो ये इसके यूज हैं.
So now look at this. We are going to discuss about the angle. So what is angle basically? Angle is a measure of rotation. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. अपने initial point से एक ray का rotation, right? एक ray कैसे rotate कर रही है? That thing is called as angle, right? If you look at the figure here, if you look at this figure here, in this figure, this is one ray is OA. एक ray यहाँ पे OA है. This is a ray, and this is second ray OB. ठीक है. अब OA is the initial side and OB is the terminal side in this case. In this case, the original ray OA is called as initial side and the final position after rotation is called terminal side. तो OA ऐसे थी, ऐसे OA थी, तो इसको क्या किया हमने? रोटेट किया. रोटेट its initial point. So this is the initial point here like this and I rotate like this here. ऐसे हमने इसको रोटेट किया. ठीक है. रोटेट करने पे क्या हुआ? ये रोटेट होके OB बन गई है. That OB is called as terminal side, right? And this जो रोटेट होती है पॉइंट फिक्स होता है, that point is O and this point is called as vertex. So terminal side, initial side and this is called as vertex, right? If the direction is, look at this, what is the direction in this case? In this case the direction is anti-clockwise. इस केस में डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है. देन दिस एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव. जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव. एंगल को पॉजिटिव बोलते हैं. एंड इफ यू लुक एट दिस सेकंड थिंग, व्हेन द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, इस केस में डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इनिशियल रे OA थी हमारे पास, राइट? इनिशियल OA को क्या किया? OA को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो ये OB आ गया. दिस इज द टर्मिनल साइड OB और किसके अलोंग? एक वर्टेक्स फिक्स पॉइंट के अलोंग हमने इसको रोटेट किया है. ठीक है. अब जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो एंगल आता है हमारा, दैट एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल इज नेगेटिव इन दिस केस, राइट? एंगल इज नेगेटिव. एंगल कैसा आएगा? एंगल आएगा नेगेटिव, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, द ओरिजिनल रे कॉल्ड इनिशियल साइड. ओरिजिनल रे को इनिशियल साइड बोलते हैं. एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद जो रे मिलती है फाइनल रे, उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल. एंगल की टर्मिनल साइड. ठीक है. द पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है यहाँ पे O है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं. इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल कैसा होगा? एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव. And if the direction of the rotation is clockwise, then the angle is said to be negative. It is given in this figure, right? Now look at this on the screen. Okay, Nishtha, am I audible to you? Nishtha, could you please read this written on the screen? Yes, sir. The measurement of an angle is the amount of rotation performed to get the side from the initial side. There are several units for measuring angles. The definition of an angle is one complete revolution from the position of the initial side as indicated in figure 3.2. This is often significant for larger angles. For example, we can say that a rapidly spinning wheel is making an angle of say 15 revolutions per second. We shall describe two other units of measurement of an angle which are most commonly used, twice degree measure and degree measure. Okay. Thank you, Nishtha. So in this, if you look at this, the measure of the angle is the amount. Angle का measure क्या होता है? वो amount होती है the rotation performed to get the terminal side from the initial side. Initial side से terminal side पे कितने amount rotation हुआ है, that is called as the measure of the angle. उसको बोलते हैं measure of the angle, right? Initial side से terminal side पे कितना amount rotation हुआ है, that is called as measure of the angle. ठीक है. There are several units for measuring angles. एंगल को measure करने की several units होती हैं. हम लोग एंगल को डिग्री में measure करते हैं, रेडियन में measure कर सकते हैं, स्टीरेडियन में measure करते हैं solid एंगल को, right? So various units are there. The definition of an angle suggest a unit. जो definition है एंगल की वो एक unit suggest करती है, one complete revolution. अगर आप इस फिगर में देखेंगे, ये OA है, ये OA है अगर यहाँ पे, और इसको मैंने ऐसे रोटेट किया और एक कंप्लीट रोटेशन होके फिर से यहीं पे आ गई है,
right? Initial side and terminal side coincide on each other, then that is called as one complete revolution हो गया है, right? A complete revolution from the position of the initial side as indicated in figure 3.2, right? This is often convenient for large angles. ये large angles के लिए use होता है one complete revolution. For example, if we can say that a rapidly spinning wheel is making an angle of 15 revolution per second, तो जो व्हील होता है वो 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, तो एक बिगर एंगल, एक लार्ज एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग एंगल की जो यूनिट है, एंगल की जो डेफिनेशन यूनिट हम लोग ने सजेस्ट किया कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन भी एंगल की यूनिट होती है, राइट? वी शैल डिस्क्राइब टू अदर यूनिट ऑफ द मेजरिंग ऑफ एंगल दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, that is degree measure and radian measure. So this is our first topic in this chapter, what is degree measure and what is radian measure. So let us discuss this degree measure and radian measure. So ये हमारा पहला टॉपिक है, डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है. पहले डिग्री मेजर देखते हैं, व्हाट इज डिग्री मेजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर. इसमें अदर यूनिट से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करना है ये हम लोग सीखेंगे. इससे पहले हमें पता होना चाहिए रेडियन मेजर और डिग्री मेजर का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में. Okay, let us start with this degree measure. Abhishek, Yadav, am I audible to you? Abhishek? Yes, sir. Okay. Could you please read this written on the screen? Yes, sir. If a rotation from initial side to terminal side is 1 by 360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 degree. A degree is divided into 60 minutes and a minute is divided into 60 seconds. 1/6 of a degree is called a minute, written as 1 dash, and 1/6 of a minute is called a second, written as 1 and Okay. 1 dash. If a rotation from initial side to the terminal side, initial side, suppose it is an initial side and this is the terminal side, right? If the rotation is 1 by 36th of a revolution, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी, उसका 1 by 360th ऑफ अ रेवोल्यूशन लगा हम ले, दैट एंगल इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ 1 डिग्री. उस एंगल को हम लोग बोलते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड मेजर ऑफ 1 degree and it is written as 1 degree like this, 1 degree. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 degree. ठीक है, 1 degree. तो डिग्री इसकी बिगर यूनिट है डिग्री एंगल की, ठीक है. इससे स्मॉलर यूनिट हम लोग इसको मिनट में ले सकते हैं, मिनट. मिनट से स्मॉलर यूनिट होती है सेकंड. जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये होता है किलोमीटर, 1 किलोमीटर होती है डिस्टेंस की यूनिट, और स्मॉलर यूनिट होती है मीटर. मीटर से स्मॉलर यूनिट होती है सेंटीमीटर, राइट. तो इसी तरह से एंगल की जो यूनिट है वो डिग्री है. डिग्री से स्मॉलर यूनिट हमें लेनी है तो उसको मिनट होगी, मिनट से स्मॉलर होगी तो सेकंड होगी, ठीक है. ठीक इसी तरह से जैसे किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, और उससे स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर होती है. ठीक इसी के बाद जैसे आर होता है 1 आवर टाइम की यूनिट, ठीक है. आर से छोटी यूनिट मिनट, राइट. और मिनट से छोटी यूनिट सेकंड, और भी छोटी होती चली जाती हैं फिर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, लाइक दैट. सो दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो ये बिगर यूनिट है टाइम की, ये और स्मॉलर यूनिट है, ये और स्मॉलर यूनिट है. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपकी डिग्री की जो स्मॉलर यूनिट है मिनट,
और जो आर की स्मॉलर यूनिट है मिनट और सेकंड, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में रिलेट नहीं करती हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज विद द मिनट ऑफ डिग्री एंड विद द मिनट ऑफ आर, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. तो फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट. सेकंड थिंग इज 1 डिग्री को मेजर, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 लिखते हैं और ऊपर इसके छोटा सा एक सर्कल टाइप बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कैन बी रिटन लाइक दिस, राइट, इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 मिनट, मिनट का जो साइन है, डिग्री का साइन देखा आपने, एक ऊपर 0 बनाई, तो 1 मिनट को लिखेंगे 1 मिनट, मिनट के ऊपर लगाते हैं डैश, इस तरह से डैश, द सिंगल डैश इज फॉर मिनट, राइट. और सेकंड को कैसे लिखते हैं, इफ आई नीड टू राइट 1 सेकंड, एंगल की यूनिट 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को लिखेंगे 1 के ऊपर डबल डैश. सो दिस डबल डैश इज डिनोटेड फॉर, डबल डैश इज डिनोटेड फॉर सेकंड, single dash is denoted for minute and this smaller circle is denoted for degree. अब इनका रिलेशन है, let us look at the relation between this minute, degree and second. So जो 1 डिग्री होती है, most important relations I am going to write here. 1 डिग्री is equal to 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. This thing you must keep in your mind. 1 degree is equal to 60 minute and the second relation is 1 minute, 1 dash, dash means minute, is equal to 60 second, second for the second I am putting 2 dash, right. So these are the two relationship between minute, degree and second. 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड. So this is the very important relation you must keep in your mind, right. So this is, they explain about the degree here, right. Now let's move here. Now look at this, some angles here, some of the angles whose measure are 360 degree. कुछ एंगल्स के मेजर यहाँ पे हमें दे रखे हैं. Look at this first one, इस एंगल का मेजर कितना है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो इसका मेजर कितना आया, 360. क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एसी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव 360 डिग्री आएगा. लुक एट दिस, अगर यहाँ पे हाफ सर्कल कवर किया तो कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री. लुक एट दिस, हाफ सर्कल और फिर 90 डिग्री मोर, तो कितना आएगा, 270 डिग्री. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल मेजर इन डिग्री. लुक एट दिस 420, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, 360 हो गया, और ये 360 से आगे जा रहा है. सो दिस एंगल मेजर इज 420. लुक एट दिस, दिस इज एंगल मेजर, OA इज द इनिशियल, OA इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये टर्मिनल लाइन है, OB, OB इज टर्मिनल लाइन. तो देखो किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशन, टर्मिनल लाइन का एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है. तो क्लॉकवाइज में कैसे लेते हैं साइन, नेगेटिव, एंगल कैसा आता है, नेगेटिव. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एंगल कितना आया, -30 डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस इज -420. इसमें क्या हुआ, ये यहां से चला, एक क्लॉकवाइज पूरा सर्कल लिया इसने, 360 डिग्री हो गया, और उससे नीचे आया, तो इट इक्वल टू -420 डिग्री. आई होप दिस इज द थिंग व्हाट इज डिग्री, एंड नाउ दिस थिंग इज डिग्री मेजर इज क्लियर टू यू.